Okay, kids, so today we are going to study our chapter number 5, that is periodic classification of elements. Okay, periodic classification of elements. Before that, we have studied in our lower classes about the atomic numbers. Atomic numbers are presented by Z, correct? Atomic mass, that is denoted by A, correct? Itna we have already studied. So on the basis of the atomic number, the elements in the periodic table are placed. So first is hydrogen, then helium. Accordingly, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Accordingly, all the elements are placed in tabular method, ठीक है, according to their properties. Means if you see that I have shown you gap between these two, these elements must be having the same properties, these elements must be having the same properties, so they are arranged in a periodic table in such a way that the elements having similar properties occur in the same vertical column or group. ये जो आपका vertical column है, this whole vertical column, this vertical column has the elements which have same properties. Okay, now many of the scientists have made the attempt for the classification of elements. Now talking about the classification, many of the scientists have made an attempt to classify the elements. Among them, first was Dobereiner. Okay, and his method is known as Dobereiner's triad. Okay, the very first topic of our chapter, that is Dobereiner triad. अब इसने क्या किया बच्चों? In this classification, it was totally based on atomic mass. ये पूरा classification जो था, that was totally based on atomic mass. According to this, when elements are arranged in order of increasing atomic mass, group of three elements having similar properties are obtained. जब भी आप एलिमेंट्स को ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक मास मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो व्हाट डॉबिनेर सेड दैट ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, group of how many elements, three elements, group of three elements having the similar properties are obtained. ठीक है, तो उसने क्या किया, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड बीइंग नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स. सपोज हमने ये 1, 2 और 3 ये तीन एलिमेंट लिए, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, आई एम जस्ट सिंपली टेकिंग 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट. तो उसने क्या बोला कि इस पूरे का जो एवरेज मास होगा ना, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सेकेंड वन, नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द सेकेंड वन. और उससे एग्जाम्पल क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, लिथियम का मास होता है 6.9, Na दैट इज सोडियम का मास होता है 23, K दैट इज पोटेशियम का मास होता है 39. सो ही सेड दैट कि इनका एवरेज मास जो है दैट इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट. तो ये था आपका डॉबिनेट ट्राइड. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास. फर्स्ट थिंग, that this is based on atomic mass. Second thing, according to him, he said that if the elements are arranged in the increasing order of atomic mass, group of three elements having similar properties are obtained. ठीक है, तीन एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है दैट इज ऑब्टेन. एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा उसका मास इज नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. ठीक है, बाकी के जो दो एलिमेंट्स होंगे उनके एवरेज इक्वल हो. ठीक है, अब देखो इसने कुछ बनाया तो इसका लिमिटेशंस भी होंगे. ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या थे, it fails to arrange all the known elements in the form of triads even having similar properties.
इसने ये 3 एलिमेंट सपोज प्लेस किए, ठीक है, तो और भी तो एलिमेंट्स होते हैं ना जिनकी सेम प्रॉपर्टी होती है, तो इट फेल्स टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स, वो सब एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स अरेंज नहीं कर पाए, ठीक है, दिस वॉज डॉबेनेट राइट, ठीक है। नेक्स्ट आया न्यूलैंड, सेकेंड वॉज न्यूलैंड, और ये न्यूलैंड वाले को बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इसमें उसने क्या बोला, व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, मैंने एक एक में 8 एलिमेंट्स डाला, तो उसने क्या बोला, आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, मतलब 9th एलिमेंट जो आया उसकी प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट की प्रॉपर्टी आर इक्वल, उसकी प्रॉपर्टीज जो है दैट इज सेम। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट की व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इसने कैसे प्लेस किया था, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, K, Ca, Cr, Ti, Mn, Fe, CO oblique CO and Ni, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करके उससे काफ़ी सारे दिए थे। अब इसका जो लॉ था, ठीक है, इसमें क्या था, इसके लिमिटेशंस क्या थे कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, ठीक है, इसका जो लॉ था वो कैल्शियम तक ही खाली एप्लीकेबल था, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा मैंने CO एंड Ni, तो न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसने क्या किया, यहाँ से एडजस्टमेंट चालू किया, CO और Ni दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है, ठीक है, उसने उन दोनों को एडजस्ट करके कैसे भी करके वो कॉलम में डाल दिया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर, अब न्यूलैंड ने क्या बोला कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही है, सॉरी 56 एलिमेंट्स ही है पूरे नेचर में, ठीक है, ये उसका थर्ड लिमिटेशन था। फर्स्ट लिमिटेशन क्या था कि द लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल टू कैल्शियम, सेकंड था कि उसने CO और Ni जिसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग है उनको एक ही जगह पे एडजस्ट किया कुछ भी करके, एंड थर्ड थिंग था अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड only 56 elements existed in nature and he bluntly said that no more elements would be discovered in फ्यूचर में और कोई भी एलिमेंट्स कभी डिस्कवर होंगे ही नहीं, ये चीज न्यूलैंड ने बोली, ठीक है। नाउ दीज वर द टॉप 2, ओके। इसके मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, what did Mendeleev say, that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of atomic masses, ठीक है, उसने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है, मतलब कि व्हेन मेंडेलीव स्टार्टेड हिज वर्क ओनली 63 एलिमेंट्स वर देयर, ठीक है, ओके।
only 63 elements were there, and he selected hydrogen and oxygen as, why? Because they are very reactive and form compounds with most of the elements. ठीक है. Now he sorted out the elements with similar properties and observed that the most of the element got a place in the periodic table and were arranged in order of their atomic masses. उसने क्या किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मेन लिया था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है. और उसने हाइड्रोजन ऑक्साइड्स के फॉर्मूला लगा के अलग अलग एलिमेंट्स फॉर्म किए और उसने क्या देखा, उसने सॉर्ट आउट करना चालू किया फिर. ठीक है. ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज. अब उसने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल एंड वर अरेंज्ड इन द and were arranged in the order of their increasing atomic masses. वो कैसे अरेंज थे? on the base of their increasing atomic masses. ठीक है. it is all, उसने ये भी ऑब्जर्व किया that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. अब उसने बोला कहीं कहीं पे periodically जो elements जिनकी physical and chemical properties same है, those elements are recurring. तो उसके बेस पे उसने हमको ये स्टेटमेंट दिया that the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of the atomic number. ठीक है. अब उसने क्या किया कि जो वर्टिकल कॉलम्स थे, वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग कॉलम्स थे, उसको नेम दिया ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है उसको नाम दिया पीरियड्स. ठीक है. वर्टिकल कॉलम्स एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स एज पीरियड्स. यू कैन सी द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल ऑन पेज नंबर 83. ठीक है. he also said a term that is periodicity of properties. Periodicity of properties means the repetition of properties of elements after certain regular intervals. मतलब जैसे पहले हमें बोल दिया जाता था ना, हर 8 के बाद पीरियड सेम हो रहा है, या हर, तो सेम चीज़ उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. कि आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, आफ्टर एवरी रेगुलर द repetition of properties is happening, that is known as periodicity of properties. ठीक है. after the repetition of properties of elements after certain regular intervals, that is known as periodicity of properties. Now there are few merits and demerits, I would say there are few merits and limitations of Mendeleev's periodic table. Merit क्या है? Mendeleev left vacant places in his table which provided an idea for the discovery of new elements. आप उसका टेबल देखोगे ना बच्चों, तो you will find few empty spaces. वो empty spaces उसने क्यों रखा? So that, क्योंकि उसको पता था कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होने के चांसेस है. ठीक है. so that he can provide, it is the idea for the discovery of new elements. ठीक है. Second thing, Mendeleev's periodic table was predicted properties of several undiscovered elements on the basis of position. दूसरा चीज, I am writing only the keyword of this point. ठीक है. undiscovered. ठीक है. Mendeleev periodic table was predicted properties. उसने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किया था, तब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड भी नहीं थे उनकी पोजीशन के बेस पे. थर्ड थिंग, इट इज यूजफुल इन करेक्टिंग द डाउटफुल एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स. ये जो पीरियड टेबल थी, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास बहुत डाउटफुल थे. ठीक है. एटॉमिक मास ब्रैकेट में लिख लो डाउटफुल. ठीक है. डाउटफुल एटॉमिक मासेस को करेक्ट करने के लिए ये टेबल जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी. एंड फोर्थ थिंग, नोबल गैसेस कुड एकोमोडेट इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग. नोबल गैसेस जो थी, अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल के लास्ट का जो पूरा वर्टिकल कॉलम है, दैट इज ऑल नोबल गैसेस. तो नोबल गैसेस जो थी वो एकोमोडेट हो गई थी विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. अब इसके लिमिटेशंस. ओके. नाउ द
limitations of Mendeleev periodic table. ठीक है. फर्स्ट थिंग, नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं दिया था. नो करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वॉज इन मेंडेलीव पीरियडिक टेबल. फॉर एग्जाम्पल कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन, तो कोई भी उसको हाइड्रोजन को फिक्स्ड एक पोजीशन नहीं मिला था. सेकेंड थिंग, नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स मतलब जैसे Cl है, Cl35 भी हो सकता है, Cl37 भी हो सकता है. तो इन आइसोटॉप्स के लिए देयर वाज नो प्लेस. ठीक है. थर्ड थिंग, नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मासेस. इसका मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मास और बिफोर विद हायर एटॉमिक मास. कुछ कुछ पोजीशंस जो ऐसी थी, कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन ऐसी थी कि लोअर एटॉमिक मास वाले पहले, हायर एटॉमिक मास वाले बाद में, ऐसे भी उनकी पोजीशन जो थी वो प्रॉपर नहीं थी. ठीक है. दिस वाज द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. नाउ विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.